Assalamualaikum. Welcome back to Mathematics Prime students again. Today I'm here with chapter 7, ratio, rate, time and speed, and we are moving towards the last exercise of this chapter, exercise 70. Okay, in the starting lectures or in the previous videos lectures we have covered the practices now and the exercise 7a, 7b, 7c, and today we are moving towards the last exercise. So the question 1 that is related to speed, already we have covered the practice now 11, 9, 10. These three practices are related to the question number 1. So if you practices that question, so after practices that practices now, question number 1 will be seems very easy to you guys. So in question number 1 we have a particle travels at a speed of distance we have is to 4.6 kilometer, and the time that is given, the particle traveling that time is 30 minutes. Okay, a particle travels 24.6 kilometer in 30 minutes. Find the speed of the particles. We have to find out the speed of the particle, and for finding out the speed, as we know that the formula given in the book is distance covered, distance travel, distance covered. You can write anything. Basic things that here will be your distance in the numerator, and in the denominator will be your time, the total time taken to cover that distance. So we have to put that values here. One thing, we have to give our answer not only to find out the speed, rather we give our answer to find out our answer in the required units, that is the kilometer per hour. Now it is your own choice, rather you convert your units directly in the formula, or you have to simplify in as a step by step. So we can convert it directly. Okay, distance is already given in kilometer and we have a required unit kilometer, but here we have a time in min, and in the answer we give our answer in the time as hours. We will convert this time into hour. Put the value of the distance is equal to 24.6 kilometer and the time is in 30 minutes. Now here we have to convert this 30 minutes into hour. As we know that 1 hour is equal to 60 minutes. So here we have to divide this 30 with the 60. Okay, 4.6 divided by this 30, we have to divide this 30 by the 60. 60 से क्यों डिवाइड करें कि हमारे पास जो 30 मिनट्स हैं इनको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें. अब 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय द 60. 3 1s are 3, 3 2s are 6, so we have 24.6 डिवाइडेड बाय 1/2. आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है आपकी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है. सो 24.6 मल्टीप्लाई बाय 2, इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन दैट 1 ऑल्सो. Okay, 2 6 are 12, 2 1 carried, 4 is 8 plus 1 9, 2 2s are 4. So we can answer 49.2 kilometer per hour speed of the particle to move. Okay, now in the second part we have to give our answer is meter per second. Okay, in second part we have to give our answer is meter per second. Distance आपके पास वही है 24.6 किलोमीटर, टाइम आपके पास मिनट्स में है. अब इन किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है हमें, और टाइम जो मिनट्स में हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है. अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो हमें क्या करना है, जब स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो हमें अपनी यूनिट्स को रिक्वायर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. So we have to write down the formula of speed. Time is equal to distance covered and time taken. Distance आपके पास कितना है 24.6 किलोमीटर और टाइम हमारे पास है 30 मिनट. किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000, एंड टाइम मिनट्स में हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सो हम यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, ताकि हमारे पास यूनिट क्या आ जाए मीटर पर सेकेंड. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. 24.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, 24600, एंड नेक्स्ट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 60. Okay, so by multiplying 30 into 60, we have an answer that is 1800.
ज़ीरोज़ को ज़ीरो से कट कर लें। अब हमारे पास है 246 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। Okay, now we have to divide 246 divided by 18, so we have an answer 13.6. Okay, कैलकुलेटर में देखिए आपके पास कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है 13.666, so you have to round up here 13.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ कर दें और कुछ स्टेटमेंट्स लिख लीजिए। आपके पास पार्टिकल की स्पीड है अगर मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दी जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। Okay, so now we have to read out the statement of the second question, that is a high-speed train travels at a speed of 200 km per hour. If the train sets off from the station A at 12:24 and reaches the station B at 14:12, find the distance between the two stations, giving your answer. हमारे पास स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, लेकिन टाइम एग्जैक्टली क्या टाइम टोटल है हमें वो नहीं गिवन। हमें ये पता है कि एक स्टेशन से जब ट्रेन में अपना डिपार्चर टाइम जो उसका था जब वो निकली थी उस टाइम था 12:24 और अराइवल टाइम था स्टेशन बी में उसका 14:12। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम था कितना, क्योंकि जब हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम तो उसमें हम एग्जैक्ट टाइम पुट करते हैं कि टाइम आपके पास 1 आवर है, 3 आवर है, मिनट्स में है, सेकेंड्स में है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, सबसे पहले आपने वो नॉलेज यूज़ करनी है जो कि हमने टाइम के टॉपिक में सीखी थी कि जब हमें डिपार्चर और अराइवल टाइम गिवन हो तो हम किस तरह से टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम दोनों स्टेशन से टाइम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद स्पीड गिवन है, हमने टाइम को पुट कर देना है, अपनी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और जो फाइनल डिस्टेंस का आंसर होगा वो हमने मीटर्स में देना है। तो एट द एंड हम यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to note down the step of timing of station A and station B and find out the total time taken by the train to moving towards from one station to the other station. ओके, हम यहाँ पे नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेशन ए पे हमारे पास जो डिपार्चर टाइम है ट्रेन का दैट इज़ 12:24 और स्टेशन बी में जो हमारे पास अराइवल टाइम है दैट इज़ 14:12। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना था स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने में ट्रेन को टाइम कितना लगा। 12 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दैट इज़ 13 है, उसके बाद हमारे पास 14 स्टार्ट होगा। अब देखें, सबसे पहले आप एक जो होल फिगर है उसको काउंट कर लें कि आपके पास आवर्स कितने लगेंगे, 1 आवर। अब आपने काउंट आउट करना है मिनट्स को कि कितने मिनट्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 12 में आपने 12:24 में कितने मिनट्स और ऐड किए कि हमारे पास मिनट का टाइम आ गया दैट इज़ 20। ओके जी, now when we added 36 minutes more in 12:24, so we get the next hour that is the 13. So here we have the only 36 minutes, यानी कि हमारे पास टाइम था 12:24 जो कि डिपार्चर टाइम था ट्रेन का। इसमें 36 मिनट्स को और ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारे पास 13 था। तो 36 मिनट्स यहाँ से हमारे पास गिवन है और 14 तक हमने 13 से 14 1 आवर को काउंट किया, लेकिन 14 से आगे हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 12। तो 12 मिनट्स ये जो नेक्स्ट थे एक्स्ट्रा हम मिनट्स को मिनट्स में ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 12। आवर्स हमारे पास कितना कंप्लीट हो रहा है, 1 आवर कंप्लीट हो रहा है और मिनट्स हमारे पास कितने 36 मिनट्स और यहाँ से कितने मिनट्स हैं 12 मिनट्स, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 48 मिनट्स। तो टोटल स्टेशन ए से स्टेशन बी तक एक ट्रेन को मूव करने में हमारे पास कितना टाइम उन्होंने दिया, 1 आवर 48 मिनट्स। ये हमारे पास टाइम आ गया जो कि हमारे पास स्टेशन ए से स्टेशन बी तक मूव करने में दिया। ये आपने सिर्फ एक पार्ट को सोल्व किया, लेकिन अगर आप स्पीड देखें जो हमें गिवन है, अगर मैं स्पीड को नोट करूँ यहाँ पे तो स्पीड हमें किस में दी हुई है, 200 किलोमीटर पर आवर। ये वो स्पीड है जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। अब देखिए यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा, आपको क्या कहते हैं हिंट मिलती है कि टाइम हमारे पास है 1 आवर 48 मिनट, लेकिन जो हमारे पास स्पीड गिवन है दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। उसमें जो हमारे पास टाइम की यूनिट है आवर है। इसका मतलब ये जो 48 मिनट्स हैं इनको भी मुझे आवर में कन्वर्ट करना है। मेरे पास टाइम की एक यूनिट होगी, वो यूनिट कौन सी होनी चाहिए, आवर्स की। हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1 आवर इज इक्वल होता है 60 मिनट के, तो हम इस 48 को डिवाइड कर देते हैं 60 से। ठीक है, 1 आवर, ये जो 1 है ये आवर का और जो 48 है ये हमारे पास मिनट का था, इसको 60 से डिवाइड कर दिया ताकि टाइम की हमारे पास एक ही यूनिट आ जाए। वो यूनिट कौन सी हो, आवर। क्यों हो, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से गिवन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 6
8 से 48, 6 10 से 60, देन अगेन आपके पास सिंप्लीफाई ऑर्डर टू 4 से 8 टू 5 से 10, 1 होल 4/5 हमारे पास आ गया टाइम इन फॉर्म ऑफ आवर। अब टाइम हमारे पास आवर में आ गया, स्पीड हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर होगा वो हमने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देना है। ओके जी, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास अननोन है, तो डिस्टेंस को हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं डी सी तरह। टाइम हमारे पास है 1 होल 4/5, और जो स्पीड है वो हमारे पास दी हुई है 200 किलोमीटर पर आवर। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमारे लिए अननोन है। हम टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी स्पीड से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें डी वन से डी, और हमारे पास स्पीड है दैट इज़ 200, दैट गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद और टाइम, दिस इज़ 1 होल 4/5। ओके जी, यहाँ पे मिक्सड फॉर्म हम सॉल्व करते हैं। डी इज इक्वल टू 200, 5 1 5 प्लस 4 9/5, 5 1 5, 5 4 20 and 0 as it, so 40 multiplied by 90, 9 0 से 0, 9 4 से 36। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है किलोमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड की यूनिट थी किलोमीटर पर आवर था। अब जब डिस्टेंस आया तो ये किलोमीटर में। हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है हमने मीटर में आंसर करना है, किलोमीटर में आंसर नहीं करना। तो हम ये जो डिस्टेंस का 36 किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। सो 360 and 000 meters, this is the answer of the distance। डिस्टेंस हमारे पास मीटर में रिक्वायर्ड था, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।